Good morning, students. This is your social science teacher Deepa. Yesterday, we have learned about nuclear energy and geothermal energy. In my previous video, I have explained about nuclear power plants located in India and uses of geothermal energy. In the form of hot spring, we have used geothermal energy for cooking, heating, bathing for several years. And we have seen that in India, geothermal power plants located in Manikarnam in Himachal Pradesh and Puga Valley. And after that, we have discussed about advantages and disadvantages of nuclear energy and geothermal energy. Now we will go through tidal energy and biogas and about the saving of energy. So students, tidal energy, this energy is generated from the tides. That's why it is called tidal energy. Tidal energy is harnessed by building dams and narrow opening of the sea. During high tide, the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. You can see in the book on the page number 36, figure 3.22. In this, there is a diagram of low tidal energy used to produce electricity, in which we can see how tidal energy is generated. Here you can see the low tides, and in the another direction high tides was there, and one generator between the both tides, and above side there is a dam, and with the holes water comes into the speed and turbine rotates with the rotation of high tides speedily. Tidal energy generates, means electricity generates. And Russia and France at the world level are the highest producer of tidal energy. In India, Gulf of Kutch have used tidal mill farms. It is Gulf of Kutch is near Gujarat state. Now we will move towards biogas. Biogas is energy generated from the dead and decayed organic matter, dead plants, animals, animal dung, kitchen waste, etc. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas. The biogas fuel is a mixture of methane and carbon dioxide. And biogas is an excellent fuel for cooking, domestic, lighting, rural areas and for producing organic manures. Students, आपको पता है गाँवों वगैरह में क्या होता है कि खाना वगैरह बनाने के लिए भी लोग काऊ डंग से काऊ केक्स प्रिपेयर करते हैं, जिससे क्या होता है वो लोग घरों में खाना बनाते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर हैं ये सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं? डेड प्लांट से, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, और ये सब चीज़ें हमको ना नेचुरली ही मिल जाती हैं, है ना। बायोगैस जनरेट करते समय क्या होता है कि डेड प्लांट और डिके एनिमल को जो एक इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया उसको ब्रेक कर देते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग इसीलिए बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिग्रेड हो जाता है ना। और ग्रीन वेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है और किचन वेस्ट भी होता है। और इसमें ये जब ये फ्यूल है इसके अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ना मिला हुआ रहता है, इसीलिए ये हार्मफुल भी है, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके का अच्छा फ्यूल माना जाता है, एक्सीलेंट काइंड ऑफ फ्यूल है। हियर यू कैन मूव टुवर्ड्स tidal energy and
अबाउट द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी। देखिए भाई, टाइडल एनर्जी नेचुरली अवेलेबल है, ये एग्जॉस्ट नहीं होगी, इनएग्जॉस्टेबल है, पोल्यूशन नहीं करती है, नॉन पोल्यूटिंग, इनएग्जॉस्टेबल है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, जब वहाँ पे टरबाइन लगाई जाती है डैम्स वगैरह पे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्वेटिक एनिमल भी फिर वहाँ पर अच्छे नहीं रह पाते हैं। ठीक है। जब हम लोग डैम बनाते समय फॉरेस्ट वगैरह को कट किया जाता है, आसपास के एरियाज़ को क्लीन किया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का हैबिटेट जो होता है, रहने की जगह, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हार्नेश। ठीक है। हार्नेश का मतलब है ना, वो चीज़ अब यूज़ में ला रहे हैं, मतलब टू कंट्रोल द एनर्जी ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पावर और टू अचीव समथिंग। कुछ नया के लिए हम जब एनर्जी को उसको कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को अलग तरह की चीज़ें बनाने के लिए, काम में लाने के लिए थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, तो डिफ़िकल्ट टू हार्नेश, मतलब काम में लाने के लिए जब इसको यूज़ करते हैं तभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये इसके डिसएडवांटेजेस। नाउ we will talk about biogas, advantages of biogas and disadvantages of this। एडवांटेजेस की बात करें तो लो कॉस्ट है भाई, सस्ता है, एक्सपेंसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, इजी होता है ऑपरेट करने में, इजी तरीके से अपने आप ही बैक्टीरिया उसे कट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और वो सड़ सड़ के मेन्योर का रूप ले लेता है। हम उसको मेन्योर के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। 3 R's का गोल्डन रूल था कि रीयूज़ करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। तो बायो वेस्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो रीयूज़ की जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। बस इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का कारण बनती है ये गैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ last but not least, that energy is everywhere, but we can see the harnessing this energy is both difficult as well as costly। किसी भी टाइप की बेटा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो वो कॉस्टली नहीं होती, उसका सेटअप बनाना पड़ता है। आपने टाइडल एनर्जी में देखा कि डैम में कैसे जनरेटर टरबाइन लगा करके करना पड़ता है। हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखे, कितना महंगे सेटअप्स बनाए जाते हैं, है ना। तो we should make every effort to conserve untapped energy resources। it is equally important not to waste energy that is already harnessed। अभी क्या है कि हम लोग एनर्जी को किसी भी टाइप की एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बट अगर हम इसको ही फ्रिजली, मतलब बुरी तरीके से प्रयोग करने लग जाएंगे और हम उसको सेव नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएगी और हमारी फोर्थ कमिंग जनरेशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। वो चीज़ें, एनर्जी हमारे पास सेव हो जाएंगी, जैसे जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो ख़त्म हो जाएंगे। सो इट्स अवर ड्यूटी नॉट टू यूज़ इट फ्रजली। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे लाइट जल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी स्ट्रीट लाइट ऑन है, स्कूल्स में क्लासेस में लाइट ऑन है, फैंस ऑन है, बच्चे निकल जाते हैं, देखते नहीं हैं ध्यान से, उस समय भी हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्कूल में कितनी सारी क्लासेस होती हैं। तो अगर हम उनको भी सारे लोग प्रॉपर बंद करें तो उसमें भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है। तो हम सभी का एफर्ट्स, अगर हम अपनी स्ट्रीट लाइट भी बंद कर रहे हैं, अपने घर में प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम सबका छोटा सा एफर्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आएगा। यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। जितनी ही हम एनर्जी सेव करेंगे उतनी ही एनर्जी हम और जनरेट करेंगे। सो एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो भाई हमने इसमें जितना भी पढ़ा सेव एनर्जी को लेकर के, उन सबको हमें क्या करना है, अपने एक्शंस में लेकर के आना है और अपना फ्यूचर जो है, एनर्जी फ्यूचर ब्राइट बनाना है। ठीक है। और सारे एनर्जी सोर्सेस की ऑप्टिमम यूज़ करना है, अब मिस यूज़ को अवॉइड करना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।